یوم یکجہتی کشمیر یوم کشمیر کے حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں لائن پر بات کرنے کے لیے خواجہ متین صاحب جو کہ ڈائریکٹر کشمیر افیئرز ہیں، جبکہ ہمیں جوائن کیا ہے حریت رہنما ڈاکٹر سید مجاہد گیلانی صاحب نے۔ ہمیں اس وقت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا۔ بات کرتے ہیں خواجہ متین صاحب سے۔ اس وقت آج پوری دنیا میں ہی لوگ اس بات کو جان چکے ہیں، یہ تحریک جو ہے وہ ایک انتہائی با اثر اور طاقتور تحریک میں تبدیل ہو چکی ہے۔ خواجہ متین صاحب، آپ آج کے دن اس مومنٹ پر جبکہ پاکستان بھرپور انداز سے کشمیر کے ساتھ ہے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا ہے۔ اس وقت جو پوری پاکستانی قوم ہے یکجان ہو کر مقبوضہ کشمیر میں جن کے مظلوم بھائی ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے۔ میں ذرا یاد دلاتا چلوں ناظرین کو کہ 5 اگست 2019 کے بعد جب بھارت نے یک طرفہ اقدام کیا 370 دفعہ جو اپنے آئین سے ختم کی، تو یہاں ایک تاثر پھیلا کہ یہ سارا ملی بھگت کا نتیجہ ہے اور ایک مسئلہ کشمیر کے حوالے سے دھند سی چھا گئی تھی۔ لیکن جب سے جو موجودہ سپہ سالار ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، اپنے پہلے ہی خطاب نے انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حال ہی میں جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں وہ بھمبر پہنچے، وہاں بھی انہوں نے اپنے دبنگ خطاب میں جو بھارتی حکمرانوں نے جو مظالم شروع کر رکھے ہیں 77 سالوں سے مقبوضہ کشمیر میں، ان کی مذمت کی اور یقین دلایا مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں چودھری انوار الحق، انہوں نے بھی جہادی کلچر کو دوبارہ فروغ دینے کی بات کر کے مسئلہ کشمیر میں ایک قسم کی جان ڈال دی ہے۔ اس پر جو بھارتی وزیر دفاع ہیں راج ناتھ، انہوں نے بڑا سخت رد عمل دیا، وزیر اعظم آزاد کشمیر کا نام لے کر ان کو دھمکیاں بھی دیں۔ لیکن جس طرح وہ گفتگو کر رہے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت جو پوری آزاد کشمیر کی قوم میں ایک نیا ولولہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سری نگر کا علاقہ بڈگام ہے، وہاں پوسٹر لگائے گئے ہیں آرمی چیف کے اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے اور وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے، اور اظہار تشکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ آج کا دن جو بالخصوص 5 فروری ہے، جو 1990 میں جو ہم منانا شروع کیا تھا، قاضی حسین احمد صاحب نے مرحوم نے یہ شروع کیا تھا دن، اس وقت میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اس سے لے کر آج تک یہ ایک دن مختص کر دیا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ ہم یہ اظہار یکجہتی کا دن منائیں گے، ایک دن مختص کر دیں گے تاکہ ہم ان کو بتا سکیں کہ مظلوموں کے ساتھ ہم کھڑے۔ آج بھی وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اس وقت مظفر آباد میں موجود ہیں، وہاں انہوں نے خطاب بھی کیا ہے اور یہ بتانے گئے ہیں کشمیریوں کو کہ پاکستان نہ مسئلہ کشمیر کو بھولا ہے نہ کسی کو بلانے دیں گے۔ اب جہاں تک بات ہے پاکستانی قوم کی، وہ تو ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان حقیقی معنوں میں یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ کشمیریوں کا وکیل ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ عالمی جو برادری ہے وہ کشمیریوں کی جو UN سیکیورٹی کونسل نے قراردادیں منظور کر رکھی ہیں، بلکہ ایک وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم آپ کو رائے شماری کا وہ حق دیں گے، جب تک رائے شماری کا حق نہیں مل جاتا اس وقت تک آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عالمی برادری نے جو وعدہ کیا تھا کشمیریوں کے ساتھ حق خود ارادیت کا، رائے شماری کا، وہ وعدہ آج تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ آج کے دن جب پوری قوم سڑکوں پر ہے، وہ یہ عالمی برادری سے مطالبہ کر رہی ہے دنیا سے، ایک تو ان کو یونائٹڈ نیشن کو اپنا وعدہ یاد دلا رہی ہے کہ جو کشمیریوں کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا تھا 76 سال قبل، اس کو وعدے کو کب نبھانا ہے آپ نے۔ دوسری طرف بھارت ایک ظالم اور جابر حکمران ہے۔ اس وقت جو RSS کی پروردہ حکومت ہے، وہاں جو مودی سرکار ہے، وہ اقدام پر اقدام کیے جا رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں۔ پہلے انہوں نے خصوصی سٹیٹس ختم کیا مقبوضہ کشمیر کا، ابھی جغرافیائی کبھی وہ حدیں تبدیل کر دیں، اس کے بعد ابھی جو آبادی کا تناسب ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے وہ تگ کر رہا ہے۔ ہم اس آج کے دن مطالبہ کرتے ہیں عالمی برادری سے کہ پاکستان نے جب فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے سفارتی طریقے سے مسئلے کو اٹھانا ہے، تو جب سفارتی طریقے سے بات ہو رہی ہے تو اس بات کو سنا جائے، پاکستان کی بات کو ویٹیج دیا جائے۔ جو کشمیر ہے اس وقت، اس کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کا بچہ جیل میں قید نہیں ہے۔
कोई घर ऐसा नहीं है जहां शहादत नहीं किसी ने दी है। जब इतनी शहादतें हो चुकी हैं, 1 लाख से ज़ायद लोग जामे शहादत नोश कर चुके हैं, माँओं बहनों की इज़्ज़तें तातार हो चुकी हैं, तो फिर आलमी बरादरी कब करेगी? दो मुल्क हैं, एक इंडिया और पाकिस्तान, दोनों एटमी कुव्वतें हैं। अगर उन्होंने अपना हकीकी रोल आलमी बरादरी ने अदा न किया तो इसे एटमी फ्लैश पॉइंट भी कहा जाता है, जो पाक भारत का ये जो मसला कश्मीर है इसको। तो आलमी बरादरी को चाहिए, आज का दिन हमने मुख्तस किया, आज का दिन काजी हुसैन अहमद को याद करने का दिन है, और सैयद अली गिलानी रहमहुल्लाह को, जिन्होंने ये नारा दिया था हम हैं पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा है। पिछले दिनों जो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हैं हाफिज नईम रहमान, वो भी मुजफ्फराबाद गए हुए थे। उन्होंने बड़ा खूबसूरत उस नारे का जवाब दिया है। कश्मीरियों को उन्होंने कहा है कि तुम हो पाकिस्तानी, पाकिस्तान तुम्हारा है। इसलिए पाकिस्तान और कश्मीरी हमेशा से ही लाजमो मलजूम हैं। इनके ज़मीनी रिश्ते, इनके कल्बी रिश्ते, इनके कलमे का रिश्ता, सारे रिश्ते एक हैं। और कश्मीरियों ने तो अपना फैसला दे दिया है कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। अब भारत को इस बात का डर है, यही डर भारत को राय शुमारी से रोके हुए है। आज का दिन हम सिर्फ आलमी बरादरी को अपने वादे याद दिला रहे हैं कि उस वक्त से डरें कि जब दोनों मुल्क जंग के दहाने पर आ जाएं। जी ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि आलमी बरादरी को हम अपने वादे उनके याद दिला रहे हैं, करारदादें याद दिलवा रहे हैं, लेकिन वहां से कुछ हिलजुल नहीं हो रही। सवाल आपसे यहां पर यह है कि इस हवाले से सिफारतकारी में लॉबिस्ट फर्म्स जो हैं वो एक अहम किरदार निभाती हैं कि एक एजेंडे को, एक बात को आगे बढ़ाया जाए। उस हवाले से कुछ कहिएगा। अच्छा, बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की है। मैं समझता हूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो एक धुंध छा गई थी मसला कश्मीर के ऊपर, तो अभी हम बड़ा मुतहर्रक रोल अदा कर रहे हैं। जो मौजूदा हुकूमत है, जो हमारी अस्करी क़यादत है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया भर में मसला कश्मीर को दोबारा भरपूर अंदाज में उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मुकदमा हक पर मबनी है। जब हम हक पर खड़े हैं तो हमें, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो 70% जंग है वो बयाने की जंग है। 5 अगस्त 2019 के बाद हमने वो बयानिया भी कमज़ोर पड़ता हुआ हमें नज़र आया। अभी दोबारा लगता है उस बयानिया में जान पड़ रही। पहले तो हमने पूरी कौम को यकजान करना है। पाकिस्तानी कौम 2 चीज़ों पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। एक जो है पाकिस्तान जो एटमी कुव्वत है उस पर, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, और मसला कश्मीर पर हमेशा ही पूरी कौम इसमें बिला तफरीक के मसला को ठीक है। मतीन साहब आप साथ ही रहिएगा। अब रुक करते हैं, डॉक्टर सैयद मुजाहिद हुर्रियत रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, जानना ये चाहेंगे कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि भारत ने तो बहुत कोशिश की कि आज़ादी इजहार राय को ख़त्म कर दिया जाए, और ख़त्म भी कर दिया गया, लेकिन ये लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कश्मीर की आवाज़ क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। और सवेरा आपने जो सवाल किया है बहुत अहम है। उसकी वजह यह है कि जब भी हम कश्मीर की बात करते हैं तो उसमें जो बुनियादी फरीक है, बल्कि फरीक क्या, मैं समझता हूं कि जिसका ये मसला है, जिसका ये मामला है, वो खुद कश्मीरी हैं। और वो कश्मीरी सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर के नहीं, आज़ाद कश्मीर, बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाला कोई भी शख्स जो कश्मीरी है, उसका ये मामला है, उसका ये हक है कि वो ये फैसला करे कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है या हिंदुस्तान के साथ। और इस सवाल का जवाब तारीख में हमें मिलेगा। अगर आप बात करते हैं 1947 की, तो हमें उसी वक्त से यह अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तान के बनने से पहले ही 19 जुलाई 1947 की बात है, जब कश्मीरियों ने यह फैसला दे दिया था कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ये फैसला उस वक्त एक करारदाद की सूरत में दिया गया, और इस करारदाद को फकत कोई 1 या 2 कश्मीरियों ने नहीं, बल्कि उस वक्त के तमाम इलेक्टेड कश्मीरी जो थे उन्होंने इसको पास किया, मंजूर किया, और ये हक में फैसला दे दिया कि कश्मीर यानी पूरी रियासत जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगी। अब जब आप तारीख के औराक को पलटाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि ये सिर्फ 1947 की बात नहीं है। 1960 की दिहाई हो या उसके बाद 1990 की दिहाई हो, तब जबकि कश्मीरियों ने अपना हक आज़ादी हिंदुस्तान से लेने के लिए बंदूक का सहारा लिया था। और उसके बाद हमें कई आवाज़ें वहाँ पे नज़र आती हैं, वो चाहे सैयद अली गिलानी शहीद की हो, सैयदा आसिया अंद्राबी की हो, मसरत आलम भट्ट साहब की हो, शब्बीर शाह साहब की हो, या फिर यासीन मलिक साहब हों। ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जो हिंदुस्तान से आज़ादी चाहते हैं। और ये सैयद अली गिलानी साहब का, शहीद का जो एक नारा है, जिसकी अभी बात ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब ने भी की कि हम पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान हमारा है,
ये किसी बेडरूम में नारा नहीं लगाया गया, ना ही ऐसा था कि कोई टेलीविजन चैनल कैमरा सामने हो और उस वक्त ये नारा लगाया गया हो। उस वक्त 10 लाख संगीनें वहां श्रीनगर की सड़कों के सामने खड़ी और वो हर हिंदुस्तानी फौजी बंदूक हथियार से लैस उस बुजुर्ग रहनुमा के सामने खड़ा था। ये जानता था वो शख्स भी उस वक्त कि अगर ये नारा वो लगा रहा है तो इसके बदले उसे शहीद कर दिया जा सकता है, गोली मार दी जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद वहां के तमाम जनाजे, वहां के तमाम जलसे जुलूस जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हुआ करते थे, उनका एक ही फलक शिगाफ नारा था, जीवे जीवे पाकिस्तान, तेरी जान मेरी जान, पाकिस्तान पाकिस्तान। मैं नहीं समझता कि इस सवाल का जवाब इससे बढ़कर कुछ और भी हो सकता है। मुजाहिद दिलानी साहब, बिल्कुल जो आपने कहा, पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान है, अरसा दराज से सॉलिडली खड़ा है कश्मीरी कॉज के साथ में। लेकिन 6 लाख कश्मीरी कत्ल हुए, जिसमें 7,500 के लगभग हिरासत के अंदर कत्ल हुए हैं, और इस पर आलमी बिरादरी बिल्कुल मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए है। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम ब्लॉक जो है वो कश्मीर कॉज के लिए क्या उतना एक्टिव नहीं रहा जितना उनको होना चाहिए था? देखिए, जहां तक बात है और ये सवाल है, और ये सवाल आप एक कश्मीरी से कर रहे हैं, उस कश्मीरी से जो ग्राउंड से न सिर्फ ताल्लुक रखता है बल्कि उसका खानदान जो है वो इस तहरीक आज़ादी कश्मीर में पेश है। शहदा भी हैं, कैदी भी हैं। ये इस खानदान की कहानी नहीं बल्कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के कई खानदानों की कहानी है। हमारे लिए तो जो मंजिल है वो हिंदुस्तान से आज़ादी है। हमारा तो जो सफर है वो बहुत कठिन जरूर, लेकिन बहुत क्लियर, साफ और वाज़ेह है। अब ये दुनिया है, दुनिया ने फैसला करना है कि उसने कश्मीरियों का साथ इस सफर में कैसे देना है। आप जहां इस्लामी ममालिक की बात कर रहे हैं, वहीं पे मैं समझता हूं कि एक तरफ पाकिस्तान ने बहुत भारी कीमत चुकाई है कश्मीरियों का साथ देने में। आपको कुलभूषण यादव नजर आता है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान की दहशतगर्दी सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर भी हुई है। और ये हकाइक हैं जिसकी मैं समझता हूं न सिर्फ गवाही और सबूत न्यूज चैनल्स देते हैं बल्कि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस भी इसकी गवाही देते हैं। दूसरी तरफ हमें यह भी नजर आता है कि इंटरनेशनल जराइद ने, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, यूके और यूएस के अंदर कांग्रेगेशनल हेयरिंग्स हो, पिछले 10 साल के अंदर कश्मीरियों को वाकईतन दुनिया ने सुना है। मैं एक कश्मीरी होने की हैसियत से शायद किसी हद तक आपकी बात से तजाद रखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब की दफा जो कश्मीरियों की आवाज थी वो दुनिया ने बाहर कैफ जरूर सुनी है। वो कश्मीरियों की कहानी, वो तकलीफ, अंधोनाक किस्म के गम और अलम की जो दास्तानें हैं वो दुनिया के कानों तक जरूर पहुंची हैं। अब ये मैं समझता हूं पाकिस्तान का और आजाद फिजाओं में रहने वालों का फर्ज बनता है कि इन कहानियों को वो खामोश ना होने दें, इन कहानियों को वो भुलाने ना दें, और इन कहानियों को बार बार हैमर किया जाए, दुनिया को बार बार ये क्लेम रिवाइज किया जाए, बताया जाए, ये दावा दिया जाए कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर का मसला अभी हल नहीं हुआ। जिस तरह यूनाइटेड नेशंस के जो उस वक्त सेक्रेटरी और उसके बाद ऑफिस ऑफ, इन कहानियों को खामोश नहीं किया जाए। ठीक है सैयद मुजाहिद साहब, आप साथ ही रहिएगा। ख्वाजा मतीन का एक बार फिर रुक करते उनसे जानना चाहेंगे। सर, जैसा कि आपने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का आपने जिक्र किया और अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदाद पेश भी की जाती रही हैं उन पर अमल क्यों नहीं होता, और आप क्या समझते हैं कि इसमें कोताही किसकी है? अच्छा, इससे में मैं एक बात करने लगा हूँ, बड़ी तजवीज़ भी मेरी है, एक बड़ा अफसोसनाक बात भी है कि एक तो आलमी बरादरी की मुजरमाना गफलत तो है ही है। यूनाइटेड नेशन ने जो वादा किया था वो पूरा करना चाहिए था उन्हें, और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादे हैं, कोई मामूली एक करारदादे नहीं है, जिसमें जो भारतीय उस वक्त के वजीर आजम थे एक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद से डायरेक्टर कश्मीर अफेयर्स जनाब ख्वाजा मतीन साहब, उनसे हम बात का सिलसिला जारी रखेंगे। जी ख्वाजा साहब, आप क्या फरमा रहे थे? कि जो आलमी बदमाश है नेतन्याहू, वो ये नारा लेकर आया था कि मैं जो फ़लस्तीनियों को और हमास को सफ़ा हस्ती से मिटा दूंगा, और आज उसने घुटने टेक दिए हैं और मुज़ाकरात पर मजबूर हो गया है। इसी तरह भारत जो है, जो दुनिया भर में जिस तरह कुलभूषण का जिक्र किया डॉक्टर मुजाहिद गिलानी ने, इसके साथ साथ अभी हाल ही में एक रिपोर्ट वाशिंगटन पोस्ट ने छापी है जिसमें यह बताया गया है कि राग के एजेंटों ने 20 के करीब
पाकिस्तानी और कश्मीरी यहाँ आकर कत्ल किए हैं। इस तरह आपने देखा होगा कि कनाडा में भी एक सिख रहनुमा को भी जाकर कत्ल किया गया, जिस पे कनाडा ने 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर जैसे कि भरपूर तरीके और जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। इसी पर हम बात कर रहे थे। ख्वाजा मतीन साहब और सैयद मुजाहिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मतीन साहब का रुख करते हैं, उनसे एक बार फिर उसी सवाल को कंटिन्यू करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा वाला सवाल सर जो आपसे किया था और आप उस पर बात कर रहे थे, दोबारा से कंटिन्यू कीजिएगा। तंजीला साहिबा, आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि बेसिकली इसकी अहमियत क्या है और इसको मनाने का मकसद क्या है? देखिए, पाकिस्तान की एक बाकायदा रियासती पॉलिसी रही है जिसमें पाकिस्तान ने हमेशा इस मौक़िफ़ की तायद की है, और जो कश्मीरी हक़ खुद इरादियत है कश्मीरी अवाम का, कश्मीरियों का, जो दहाइयों से एक जबर का सामना कर रहे हैं, भारत की रियासती दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। एक तो हम उनके साथ आज का दिन इज़हार यकजहती के लिए मनाते हैं, और साथ ही साथ जो अपना रियासती मौक़िफ़ हमेशा से रहा है कि हम कश्मीर के मसले के हल में कश्मीरी अवाम की जो उमंगें हैं उनके साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि कश्मीर का मसला कश्मीरियों की मर्जी से हल होना चाहिए। और आप जानते हैं इस पूरे खित्ते में उस वक्त तक अमन नहीं आ सकता जब तक कि कश्मीर का मसला हल नहीं होता। और भारत ना सिर्फ ये कि वहाँ पर जबरन काबिज है, बल्कि भारत ने चंद साल पहले जो गैर आईनी तरीके से कश्मीर की हैसियत आईनी तब्दील की थी, उसके बाद से मैं समझती हूँ कि जो कश्मीर की आज़ादी की तहरीक है उसमें एक नया खून पैदा हुआ है, उसमें एक नई जहद पैदा हुई है। और आप देखिए कि इतना मुसलसल जबर बर्दाश्त करने के बाद भी ना तो कश्मीरियों का शौक़ आज़ादी कम हुआ है, ना उनकी जद्दोजहद में कभी कमी आई है। अगरचे भारत कई बार सारी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। अभी आप ख्वाजा मतीन साहब से भी अक़वाम मुत्तहिदा की बात कर रहे थे। भारत खुद मुज़क्कर से इस बात की कि खुद इस सारे मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गया था, और अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के तौर पर तस्लीम किया कि ये एक तनाज़ा है, और इस तनाज़ा कि कश्मीर के हवाले से क़रारदादें मंजूर होती रही हैं। तंजीला मुज़हर साहिबा सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ लाइन में मौजूद है।